یہ اس مسئلے پر بلائی ہے پریس کانفرنس مگر آج جو پریس کانفرنس بلائی ہے یہ اس مدعے پر بلائی ہے کہ جو کشمیری لوگ ہمارے ملک کے باقی حصوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وہاں بیہیویئر پیش آ رہا ہے، میں اس کے لیے آپ لوگوں کو آج تکلیف دی ہے۔ ایسے تو پورے کشمیر سے لوگ جاتے ہیں، لیکن میں جہاں کا ایم ایل اے ہوں، جس ڈسٹرکٹ سے میں آتا ہوں، اگر میں کم سے کم بولوں تو 25 سے 35% لوگ وہاں میل پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا میں، اور آج نہیں پچھلے 50 سال سے 60 سال سے، بلکہ ہمارے لوگوں کے تو گھر بھی ہیں وہاں کافی جگہوں میں، انہیں اپنے گھر خریدے ہوئے۔ تو میں کل علاقے میں تھا 2 دن، تو اتنی فیملیز ہمارے پاس وہاں آئی کہ جو یہ کمپلین کر رہی تھی کہ اپنے ہی ملک میں، اگر ہمیں اپنے ہی ملک میں ہمارے ساتھ یہ ویوہار کیا جائے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے اس ملک۔ تو حالانکہ شاید 2 اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے۔ اٹس لائک اے ڈراپ ان دا اوشن۔ جہاں ہزاروں کی یا سینکڑوں کی تعداد میں انسیڈنٹس ہیں، وہاں ایک جگہ آپ 2 انسانوں کو اٹھاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کچھ آج موٹی موٹی باتیں بتا دوں۔ جتنا لائٹلی ہم نے اس کو لیا ہوا ہے اتنا لائٹلی یہ معاملہ نہیں۔ میں دلی کی طرف، وہاں کے جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے بی جے پی کی، ان کی طرف رجوع ہو کر کہوں کہ جہاں وہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ڈیفنس میں خرچہ کرتے ہیں، دس از اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی۔ یہ لوگ، اس میں کوئی دکی چپی بات نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں 1989 میں سے لے کر آج تک ایک کانفلکٹ چل رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ جو ہیں شاید قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیر از اے کانفلکٹ، یہاں ایک سیسیشنسٹ ٹینڈنسی تھی اور شاید ابھی بھی ہے۔ یہ جو لوگ جاتے تھے، دے ور ایمبیسڈرز آف انٹیگریشن۔ یہ وہ ایمبیسڈرز تھے جو بلیو کرتے تھے کہ ان کا لائیولیہڈ، ان کا اکنامک لائیولیہڈ ہندوستان میں، اور وہ ہندوستان کے ایمبیسڈر واپس بن کر آتے تھے۔ آج آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں، یہ جو یہ ایمبیسڈر کا رشتہ ہے۔ What will they say today when they come back? Don't you think کہ جو 10,000 آرمی، 20,000 آرمی فوج نہیں کر پاتی ہے، وہ یہ لوگ کرتے تھے؟ اب آپ ان کو وہاں سے مار پیٹ کر واپس لا رہے ہیں۔ یہ اتنا آسان تو ہے نہیں۔ اور اس میں مطلب اگر ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہمارے ملک کی، اگر ان کو لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے، تو پھر تو اٹس اے میٹر آف گریو کنسرن۔ ہماری لیڈرشپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس سے کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے۔ دیر آر فورسز آف انٹیگریشن اینڈ اینٹی انٹیگریشن۔ اور مجھے یہ بتائیے، اگر ہمارے ایک چھوٹے بچے کو فیس بک پوسٹ کا لائک کرنے کے لیے یو اے پی میں بند کر دیا، واٹ اسٹاپس دا گورنمنٹ آف انڈیا ٹو پٹنگ دیز روگس اینڈ ٹھگس انڈر یو اے پی اور انڈر پی ایس اے؟ میں اپنے ایل جی صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پی ایس اے ہے، آپ لگائیے پی ایس اے ان کو کہ بھائی آپ اینٹی انٹیگریشن والے ہو، یو آر سینڈنگ اے رانگ میسج، پٹ دیم انڈر پی ایس اے۔ یہ پی ایس اے کا صرف کشمیری مسلمان کے لیے ہے، ان کو بھی ڈالیے۔ اور سب سے بڑی بات میں جو یہاں کے رکشا منتری ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں، یہ جتنے بھی یہ بہادر لوگ ہیں، ان کو آ کر، ہمارے یہاں 2 بارڈر ہیں، چائنا بارڈر اور پاکستان بارڈر، ان کو وہاں لگا دیجیے۔ جب وہ اتنے مطلب if they are so brave, let them fight there۔ ایک شال والا جو اپنی روزی روٹی کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو یہ بہادری اس کو دکھاتے ہیں۔ Is this what you call valor؟ اور میری اپیل ہوگی پھر سے گورنمنٹ سے، ٹریٹ اٹ ایز اے ویری ویری امپورٹنٹ میٹر۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے تاکید کرتا ہوں کہ اس کو نیشنل سیکورٹی کیس میں ماپا جائے۔ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ میں جو ریلیشن شپ بنا رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ڈسٹرکٹ کپوارہ فار ایگزامپل، بڑا پیسفل ڈسٹرکٹ، مجھے لگتا ہے پہلا ڈسٹرکٹ جس پہ امن آیا 89 کے بعد وہ ڈسٹرکٹ کپوارہ تھا۔ آر دے پنشنگ دیم فار دیٹ؟ اور باقی جو کشمیر کے لوگ ہیں، مگر اس میں آئی وانٹ ٹو سیلیوٹ دا پیپل آف پنجاب۔ میں نے اپنے ایک ورکر کو فون کیا کل، میں 4-5 دن پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، بولا سر کیا بات کر رہے ہو، پرابلم ہمیں جے اینڈ کے میں ہوتی ہے، تو ہمارا گھر ہے، ہم تو ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان کو۔ اور آپ دیکھیے
यहाँ फौज भी मैक्सिमम पंजाबी, वो फाइट करते हैं बॉर्डर पर, वो बहादुर लोग हैं, दैट्स वाई वो उनसे इज्जत से वहां काम आते हैं। जो फाइट नहीं करते, जो घर में बैठे हैं वहां, जिनको लगता है कि भारत माता की जय बोलना ही हिंदुस्तानी है, बस वो जो लोग हैं वो इनको तंग कर रहे हैं। माई थैंक्स टू द पीपल ऑफ पंजाब। लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल, दीज आर टू, और हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 एरियाज है वहां, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, शिमला वाला इलाका और जो दूसरा वाला शायद है, वहां तो बहुत ही अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर 2 एरिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो भाईजान क्या शुक्र, तो इसलिए ये हमारी, और एक तो मैं एलजी साहब को भी बोलूं कि आप यहाँ 5 साल रहे हैं, आप हालांकि इलेक्टेड नहीं है, लेकिन एक तबका है लोगों का जो आपको पसंद करता है, आपने कुछ अच्छे काम भी किए, प्लीज आप फोन उठाइए और इनके चीफ मिनिस्टर्स को बोलिए कि कश्मीरी के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट सिचुएशन डिमांड्स फ्रॉम यू सर। आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर हियर ऑल्सो। इट इज टाइम आप फोन उठाकर उनको बोलो, और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी बोल दो कि आप तो दुनिया को जानते हैं, हमें तो कोई वहां जानता ही नहीं है, वहां तो आप 1-2 फैमिलीज हैं जिनको जानते हैं, जरा फोन का इस्तेमाल करिए मोबाइल का, और फोन करके उनको बोलिए कि प्लीज आप जो है ये जो है हमारे जो कश्मीरी लोग वहां हैं उनके साथ ज्यादती ना हो। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नॉन सीरियसनेस है, वी कैन नॉट रेलीगेट इट टू नॉर्मल ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स। मैंने भी ट्वीट किया, बाकी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब हम देखते हैं अगर ये नहीं हुआ तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सबको अपील करेंगे कि हम दिल्ली जाएं, सब कटे सारी लीडरशिप, और वहां बैठकर एटलीस्ट प्रोटेस्ट करें कि जनाब फिर जाएगा कहां कश्मीर अगर आप उसको नहीं आने दोगे। पासपोर्ट आप देते नहीं हो, वो तुम्हारा चाचे का बेटा जो है वो कहीं इन्वॉल्व था, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, काम कोई करने देते नहीं हो, अब जाएगा तो जाएगा कहां। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई मैंने आपको तकलीफ दी थी। तो ये जो है ये मामला सब कल आगरुल्ला कह रहे हैं कि फिर से वो रिजर्वेशन के मामले पर बैठेंगे। मुझे नहीं मालूम है वो क्या है, उसका वो क्लियर क्या है। हमारा रिजर्वेशन पर अपना है क्लियर कट दैट इट इज एन इशू बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। Majority of the reservation is going to Jammu, and that the only solution is district recruitment and divisional recruitment. इसके अलावा जो भी आप हम करते हैं, either let people come with a solution or else it's confusion. और एक चीज याद रखना, ये जो एक नई चीज है कि replace Kashmiri A with Kashmiri B, it is more dangerous than anything else. So, in case of reservations, and I will tell you something, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी डाला हुआ है, आई वुड से दैट इज इट्स नॉट इवन वर्थ द पेपर ऑन विच इट्स रिटन, एंड इट्स अगेन लाइज। इट्स दैट वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज एवरीथिंग, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। यूटी गवर्नमेंट कैन चेंज इट इफ दे वांट टू, उसका भी यही होगा, दे विल सेंड इट टू द एलजी एट द एंड ऑफ द डे। बट उन्होंने जो किया हुआ है आज की डेट में, दैट इज नॉट गुड, आई विल स्टिल रिपीट। और जो ये रिजर्वेशन का मामला है, लेट अस डिफाइन रिजर्वेशन। अब आरबीए था, आरबीए एक स्ट्रीम थी जिसमें कश्मीरी आता था, उसी में आपने 3% काट दिया। सो दैट इज समथिंग injustice, and reservation is a very important issue. I would not confine it to a person or persons or whatever, लेकिन ये बड़ा important issue है। तो एंड आई थिंक वो बोल रहे हैं कि वो एलजी साहब के पास फाइल है, मैं एलजी साहब को भी अपील करता हूँ कि इस पर जो है अपना वो सुना दें। इंटरिम में कुछ हो, बट लॉन्ग टर्म आई वुड टेल द गवर्नमेंट अगेन दैट शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट, इट नथिंग विल हैपन। आई विल टेल यू वन थिंग, जितने भी पार्टीज पावर में थी, फ्रॉम कांग्रेस टू पीडीपी और एनसी, सब ने मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट को उड़ा दिया है, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। They all have a role in eroding it at one time or another because of compulsions of having a Congress with them, which was from Jammu, और वो चाहते थे at times कि जहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है फिर भी आप हमारे जो है कैंडिडेट्स वहाँ लें, तो उस करके जो है ये उसकी लेगेसी है। लेकिन एज ऑन डेट प्रॉब्लम्स अब बहुत बड़ी है उससे, जो तब उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो आई थिंक regarding reservations we need to define what it is, which I believe कि कश्मीर में रिजर्वेशन कम है, जम्मू में रिजर्वेशन ज़्यादा है। एंड आई विल टेल यू, जो मैंने आंकड़े असेंबली में पेश किए थे
एक में परसों किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो रेप्लिका थी, 80% इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. सो यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस. और अनफॉर्चुनेटली सरकार ने जो किया है, आई थिंक इट इज नॉट बीन डन विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड. उन्होंने खुद से किया हुआ है. देयर इज नो प्रूफ दैट एनी रिसर्च डॉक्यूमेंट वाज देयर. देयर इज नो प्रूफ दैट दे हैव डन एनी अरिथमेटिकल एनालिसिस. तो लेट्स होप कि उसमें ये करे, बट आवर पोजीशन इज क्लियर. सर, हाउ डू यू सी द पोस्ट ऑन एक्स विद मीरवाइज? अगर मैं जिस तरीके से कल ह्यूरियत कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैन है वो पोस्ट हटा, और उसके बाद इमरान साहब का एक बड़ा वीडियो जो है वो शाया हुआ है, और खास तौर पर पूछा है कि अब लोगों को आप क्या जवाब देंगे. बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं. जिन लोगों ने आपके नाम पर जाने दी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी आप बात सुनिए. मैं परसों खिरमन गया था. खिरमन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गाँव है, 4-5 दिन पहले. तो उन्होंने बोला ऐसे रात लड़का, कल एक लड़का आया है 2 साल बाद. मतलब लेकिन 1.5 साल बाद. मतलब क्या बात थी? बोला सर उसने कोई फेसबुक पोस्ट शेयर किया था. मैंने चलो मुबारक है आप. बोला सर पर कल एक को लिया है. मैंने बोला क्यों? बोला सर उसने शेयर किया, लाइक किया है, उसको सर 15 दिन हो गए. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये एक आम कश्मीरी की जिंदगी है. अभी जो चॉकलेट का मामला है कि जनाब आप भैया उतारो, सर भैया उतारो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, बट दिस इज 5-star ट्रीटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां एक बच्चे को आप पैक कर देते हो बाहर के जेलों में. सो ये नया जो है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस. मुझे इससे कोई ये नहीं. अलबत्ता जब मैं मेन स्ट्रीम में आया, मेरे साथ जो किया गया, जो गालियां मुझे दी गई एजेंसी का, पता नहीं क्या क्या, अब पब्लिकली नहीं, अगर शर्म आती है फोन करके मेरे से एटलीस्ट माफी मांग लो. मैं कैसे जिंदा हूं मेरा अल्लाह जानता है. वरना तब बंदूक थी, तब मिलिटेंसी भी बड़ी थी. मैं कह रहा हूं मैं जिंदा कैसे हूं मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि तब तो 2 पुलिस वाले देते थे वो. राइट. तो हमने जब आया है, मैं जब मेन स्ट्रीम में आया, वो मैं अपने दम पर आया, खुद आया. मेरी तो जमानत जब्त हुई जब पहला इलेक्शन लड़ा. सो आई स्ट्रगल टू बी है. मेरे पास कोई तब तो हमारा फोन भी कोई नहीं उठाता था. बट आई वॉज मेड अ टारगेट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन. आप तो यंग हैं, लेकिन जो इसमें आपने कोई सीनियर अगर होगा, तब क्या क्या बोलते थे मेरे बारे में. राइट. और यही लोग बोलते थे. तो आज अगर आई वुड अप्रिशिएट इफ दे अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैज बीन डन टू मी इन द पास्ट. बाकी लोग सवाल पूछते, मुझसे कितनी देर पूछे? 6 साल तो मैं कोई बात करता था, वहां से पूछते थे आप पहले नहीं लड़ते थे, अब क्यों लड़ते हो? लोग तो पूछेंगे. पीपल आर बाउंड टू आस्क. People, it's bound that people will ask you questions. So much of blood has been spilled. There are lakh graves, lakhs have gone to jail, lakhs have been tortured. If you feel that nobody will ask or should not ask, still I would say, we have forgotten about thousands of prisoners and the political prisoners in the jails. We are chasing news, not victims. So it's time that you talk about victims, aap log, the plight of thousands of political prisoners. एंड who have put them into jails. वो भी तो एक है. बाकी कुछ लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे उसे लेकिन जो सपोर्ट में बोल रहे हैं इलेक्शन वाले, मतलब जो लड़ते हैं, लेट देम आस्क देयर ओन कॉन्शियंस दैट इज सेम लिबर्टी एक्सटेंडेड टू देयर इलेक्टर्स. जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, क्या उनके साथ भी बड़े प्यार से बात की जाती है? सो आई वुड हैव थॉट दैट द सेम जो मेरे पर लागू है सेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशंस, वही हर एक लीडर पर. सर, महबूबा मुफ्ती ने भी सर कल उन्होंने भी फाइल किया था. आप क्या कहेंगे? देखो जी, नॉर्मली आई वुड हैव नॉट लाइक टू कि व्हाई शुड हाई कोर्ट टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस. हाई कोर्ट ने बड़ी उसमें बोला है कि दैट डोंट क्रिएट इट एज अ पब्लिक स्टेज, डोंट ट्राई टू बिकम अ क्रूसिड. बट मैं खुद कन्विंस्ड हूं मैडम ड्रामा करी. मैडम पहले माफी मांगे, जो मुफ्ती साहब के टाइम में मेरे वालिद साहब के समेत 35 से 40 हजार लोगों को घसीट के मार के हिंदुस्तान के हर जेल में लिया गया. इट कैन नॉट हैपन कि रीसेट डबल बना दिया. ये कोई मोबाइल फोन नहीं है आप रीसेट दबाओगे. चाहे उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो इनके टाइम में ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई, दे हैव टू से सॉरी. बट अनलेस दे डोंट, वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट. ये कैसे हो सकता है जब मैं पावर में हूं सब हला, जब पावर से बाहर. और ये सब चीजें क्यों पावर से बाहर ही याद आती है? पावर के वक्त में जैसे उमरुल्लाह साहब को पावर के वक्त मीटर कुछ और लगता था आउट ऑफ पावर, पावर के बाद मीटर उनको अच्छा लगने लगा. व्हाई इज इट? ये पावर में है क्या ऐसी चीज? यह मीटर जिस तमिस खेने उस वता वो क्या चीज है बताता था. सो द पॉइंट इज दैट व्हेन इट कम्स टू, look, I'll tell you something. When it comes to human right violations, the biggest violator is a person who trivializes.
who humiliates him. Human right violation, चाहे बंदा involved हो या ना हो, is a sacrifice rendered by that person. So when you are in power and you violate the human rights, then when you are out of power, you become an advocate. For the outside observer, it becomes a joke. उनके लिए एक मजाक बन जाता है. हे हमारा ये कर चलता है, जब ये पावर में आएंगे कल फिर करेंगे. Nobody takes it seriously. That is the reality. So मेरा मानना था कि जिन जिन के टाइम में, चाहे मानते या नहीं मानते, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, they should at least leave the space of advocacy to others. When your hands are dripping with blood, what is the point of advocating it? आप साइड पर बैठिए. कल आपको, जैसे आपको कल फॉर एग्जाम्पल मैं भी गया था, मैंने भी हाई कोर्ट के पास पिटीशन की थी फॉर कलेक्टिव जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की. मगर अगर वो मुझे बोलते कि विक्टिम कहाँ है, मैं बोलता मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरा वायलेट हुआ है, मेरे 4 साल बंद किया. You know, I could have told them I am a victim. She cannot say she is a victim. थोड़ा गसा एवटा ऑफ विक्टिम आज उनकी विक्टिम है. They need victims, not victimhood. So कोर्ट ने मतलब typically I still believe कि किसी को बाहर ना ले. Because I have seen जब हम अपने वालिद साहब से मिलने जाते थे, अल्लाह माफ करे, what an ordeal it was. पहले तो हमसे फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिर वहां वेट कराना, फिर ले जाना, फिर दूर से देते थे मुलाकात. वो हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं होगा जहां कश्मीरी थे और मैं अपनी मदर के साथ अपने वालिद साहब से मिलने नहीं गया हूं. सो मुझे पता है व्हाट इट मींस. बाकी फॉर देम आई मीन से इट्स लाइक वाचिंग अ मूवी. I'll be very honest. Do you agree with what High Court has said as far as the PIL is concerned? No, I don't I'm agree. talking about suo motu cognizance. No, I am not talking about कौन सा वाला? Yesterday's that's under trial prisoners. अंडर ट्रायल Agree what प्रिजनर. the High Court has Her said. PIL was क्या बोला? Her PIL was rejected actually. मैं I want the victims to go and seek redressal, and I want touts out. Would you be representing? Let the victims, let the I since now देखिए Your क्या party हुआ. would represent. देखिए मेरी बात सुनिए. When you go unprepared, you kill the cause. So she has to answer. Why did she go unprepared to the High Court? Now it has set a legal precedence. Right? And unfortunately हमारा मीडिया भी चुप करके, ये कहीं आया ही नहीं. कत्ल हो गया है अंडर ट्रायल्स का और किसी को पता ही नहीं. कल के उसमें जो उन्हें रिजेक्ट किया, the under trial has been massacred at the hands of those who went there unprepared and who were not the victims. That's the reality. Victimhood को punish करते करते जो बेचारा victim है वो मारा गया. I would still say that High Court should look at the plight of victims, that this whole practice of sending them outside the state is violating their human rights. But my question again stands: will your party be representing those who are facing this under trials? Certainly, we will. क्यों नहीं, legal assistance देंगे, हम देंगे. But we would want the victims to go ahead. तो हमें इसमें, as I said that, you know, अगर हमारे से कोई problem होती है, we should step aside and let the victims talk to the High Court. I think the basic purport of the whole High Court judgment is that let the victim and come to talk to us. I think it is against touts, right? अच्छा सही. Mostly it's against touts, इसलिए भाई सामने आए हमारे पास, वही वकील जो है, वही वकील साहब विक्टिम्स को लाएं. तो आई थिंक वी विल फैसिलिटेट दैट. अगर उनको कोई भी लीगल असिस्टेंस चाहिए, वी विल सर्टेनली गिव देम. ऐसा Thank you. Thank you very much. Thank you.